Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharati Moore English School. So today I am going to teach you EVS 2, that is History 7th chapter, Swaraj First Conquest. Okay. It is no doubt true that Shivaji and his comrade took the oath of Swaraj in the temple of Raireshwar. Yes. So without any doubt, we are sure that Shivaji and his companion, his friends, or his comrades had took oath means promise in ऑफ स्वराज मीन्स उन लोगों ने पहले शिवाजी महाराज और उनके जो कंपेनियन थे उनके जो फ्रेंड्स उन लोगों ने क्या ऑथ लिए थे ऑथ मीन प्रॉमिस करना राइट सो दे हैड टेकन द प्रॉमिस दे हैड टेकन द ऑथ टू मेक देयर ओन स्वराज उन लोगों ने क्या प्रॉमिस किया था किस चीज की ऑथ ली थी टू मेक देयर ओन स्वराज प्रतिज्ञा तो yes so where they had taken this oath in the temple of Raireshwar. But it was a very difficult task. Yes, all we know that that was a very difficult task to make their own kingdom. So in those days, Maharashtra was governed by four different powers: the Mughal Emperor of Delhi, Sultan Adil Shah of Bijapur, the Portuguese of Goa, and the Siddhi of Janjira. Yes, so in our state, the state of Maharashtra were under the control of four emperors, four different powers like Mughal Emperor of Delhi, Sultan Adil Shah, Bijapur, Portuguese of Goa, and Siddhi of Janjira. Okay, so they were powerful opponents firm in their authority. No one would dare utter a word against them. Under this difficult condition, Shivaji had taken the oath. Yes, so they were powerful opponents firm in their authority. Obviously, at that time ये बहुत ज़्यादा powerful थे जो rule कर रहे थे मतलब जो four power different powers थे जो महाराष्ट्र के ऊपर थे right तो they were very powerful. So no one would dare utter a word against them. या obviously किसी के पास इतने dare नहीं थे कि वो उनके against में कुछ कर सके even एक word कुछ बोल सके. So under the same different condition, Shivaji had taken the oath of Swaraj. देखो इतने difficult situation के बाद भी शिवाजी महाराज ने उनके जो companions उनके जो comrades थे उन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने क्या ली oath ली. Oath means शपथ ली right. So there was no comparison. Yes, so at that difficult सिचुएशन शिवाजी महाराज ने फिर भी क्या ली वहां पर ओथ ली मतलब उनको खुद का अपना क्या बनाना था किंगडम बनाना शिवाजी महाराज वांट टू मेक देयर ओन स्वराज own a kingdom. There was no comparison between the vast forces of the enemy and a handful of Shivaji Marvelas. Yes. So there were no comparison between. Obviously ये जो four जो different powers जो rule कर रहे थे over महाराष्ट्र so उनकी comparison में जो शिवाजी महाराज के पास जो power था right so that were the handful of शिवाजी महाराज मतलब उनके जो साथ उनके जो friends थे जो उनकी कंपेनियन थी तो वो बहुत कम quantity थी मतलब as compared to their enemies four enemies no so, but Shivaji's mind was made up, and his firm resolve was his greatest source of strength. Yes, obviously, लेकिन शिवाजी महाराज ने क्या किया था अपना माइंड बना लिए थे मीन्स ही फाइनली ही वांट टू मेक हिज स्वराज उनको बनाना ही था अपना स्वराज उन्होंने अपना एकदम माइंड एकदम प्रिपेयर कर लिया था इसके लिए तो ऑब्वियसली ही वांट टू मेक देयर स्वराज अब उसके लिए उन्होंने क्या किया उनके जो साथ में उनके जो फ्रेंड्स थे जिनकी कंपेनियन थे उन्होंने उनको स्ट्रेंथ दी ऑब्वियसली वो उनकी क्या थी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी ऑब्वियसली विदाउट एनी सपोर्ट हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते राइट तो वैसे ही शिवाजी महाराज को जब उनका स्वराज बनाना था मीन्स वैन शिवाजी महाराज वांट टू मेक what want to conquer their own swaraj so at that time so many mavlas put their contribution for this okay मतलब बहुत सारे मावलाज ने मावलाज इज वन कम्युनिटी एक कम्युनिटी होती है तो उन लोगों ने बहुत अपना मतलब कंट्रीब्यूशन दिया था स्वराज को बनाने में ऑब्वियसली वैसे जैसे हम लोग को भी अगर कुछ काम करना है राइट अभी अगर सपोज हम मम्मी टीचर ने हम लोग को कोई एक्टिविटी दी है और कोई डिफिकल्ट टास्क दिया है राइट एंड यू आर नॉट एबल टू डू दैट एक्टिविटी बाय योरसेल्फ आप लोग इतने एबल नहीं है कि आप लोग वो एक्टिविटी अकेले कर सको राइट तो आप लोग क्या करोगे जब आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर है तो यू विल टेक हेल्प फ्रॉम देम है ना तो वैसे ही शिवाजी महाराज को उनका बहुत बड़ी मतलब उन लोगों से बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिली थी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी वो सब उनके नाउ तोड़ना फॉल्ट Shivaji controlled the Jagir of Pune, Sup, Chakan and Indapur. Yes. Now here Torapur. देखो शिवाजी
कंट्रोल द जागीर ऑफ पुणे, मीन्स जागीर मीन प्रॉपर्टी। तो शिवाजी महाराज ने जो लैंड था, प्रॉपर्टी थी, कहा कि पुणे, सूप और छाकन एंड इंदापुर, तो इसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, अपना कंट्रोल करके रखे थे। ऑल द फोर्ट्स ऑफ जागीर वेयर हाउएवर इन द चार्ज ऑफ ऑफिसर फ्रॉम द कोर्ट ऑफ बीजापुर। अब देखो जो हेड थे, मतलब वहाँ पे जो एक ऑब्वियसली जितने भी फोर्ट, जो भी किंग मतलब अपने अंडर में लेता था, कॉन्कर्ट करता था, तो वहाँ पर एक इन शॉर्ट, ये तो हम लोग वॉचमैन बोलते हैं ना, हम लोग की बिल्डिंग में वॉचमैन रहते जो उसके बिल्डिंग की टेक केयर करते। तो वैसे ही फोर्ट में भी ऐसे एक बंदे को बिठाते, राइट। तो वैसे ही उसका जो चार्ज लिया हुआ था, मतलब जो ऑफिसर थे वहाँ पे जो रहते थे, मतलब फोर्ट पर, तो वो जो जितने भी फोर्ट थे, कहाँ पर, पुणे, सूप, छाकन और इंदापुर में, तो इस सब का लुक ओवर कौन कर रहा था, कौन से किंगडम के ऑफिसर्स कर रहे थे, जो बीजापुर के जो किंगडम था, तो वहाँ के ऑफिसर कर रहे थे। He who controlled the fort also controlled the surrounding territory, and therefore all talk of Swaraj without the control of the fort was meaningless. Yes. So obviously अब देखो उन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज ने वो फोर्ट को भी अपने कंट्रोल में ले लिए, राइट। अब क्या किया उन्होंने, जो उसके आसपास की सराउंडिंग टेरिटरी थी उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। Therefore all talk of Swaraj without control of the fort of meaningless. Obviously अब जो भी जैसी बात हो रही थी, वो सब कैसी हो गई थी, मीनिंगलेस हो गई थी। मतलब जिनको ऐसा लग रहा था कि शिवाजी महाराज ये सारी चीजें नहीं कर सकते, बट उन्होंने कर ली। उन्होंने मतलब इतने इतने जो प्लेस दिए, पुणे, सूप, छाकन, इंदापुर, यहाँ के जो फोर्ट्स है उनको कॉन्कर्ट कर लिया था, उनको अपने अंडर में कंट्रोल कर लिए थे सारे फोर्ट्स को। A hill fort, a hill fort gave strategic support to the ruler, and Shivaji decided to capture one at a suitable time. Yes, अब हिल फोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। क्योंकि जब भी उन लोग को अटैक करना होता है एनिमीज के ऊपर, तो उन लोग कहाँ से अटैक करते हैं, ऑब्वियसली टॉप ऑफ द हिल। तो हिल के वो जो फोर्ट होते हैं, तो वहीं से उन लोग अटैक करते हैं। तो इसके लिए जो हिल फोर्ट था, दैट वर द वेरी इंपॉर्टेंट फोर्ट फॉर शिवाजी महाराज। सो दैट फॉर शिवाजी महाराज डिसाइडेड टू कैप्चर दैट। उनका मतलब शिवाजी महाराज क्या प्लान कर रहे थे, मीन्स उनको क्या करना था, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारे जो फोर्ट है उसको कैप्चर कर लिए थे, अपने अंडर में कर लिया था, बट राइट नाउ ही वांट टू कैप्चर हिल फोर्ट। उनका एक हिल फोर्ट कैप्चर करना था, कॉन्कर्ट करना था, बट एट अ सेम सुटेबल टाइम, मतलब एक परफेक्ट टाइम पर उनको ये सिचुएशन करनी थी। ऑब्वियसली अगर हम लोग कोई भी चीज़, कोई भी काम अगर फुल प्लानिंग के साथ करेंगे, देन वी विल गेट सक्सेस, अदरवाइज वी विल फेल, है ना। हम लोग अगर कोई भी चीज़ अगर प्लान के साथ कर रहे हैं एंड स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो ही वो चीज़ें अच्छी से होंगी, प्रॉपरली होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो वैसे ही शिवाजी महाराज को भी हिल फोर्ट को कॉन्कर्ट करना था, कैप्चर करना था, बट ही वॉज वेटिंग फॉर अ स्वेटेबल टाइम। वो किस चीज़ का वेट कर रहे थे, एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे थे। So for this purpose he had selected the fort of Torna. Yes, so देखो उनको कौन, obviously हिल फोर्ट तो उनको कैप्चर करना था, बट विच हिल फोर्ट ही वांट टू कैप्चर, तोरना। ओके, तोरना फोर्ट। इट स्टैंड टू द साउथ वेस्ट ऑफ पुणे इन द कन्नड़ वैली। यस, तो अब देखो ये जो तोरना फोर्ट, राइट, सो वेयर इट वाज सिचुएटेड, इट वाज सिचुएटेड इन साउथ वेस्ट ऑफ पूना, मीन साउथ वेस्ट का जो पोर्शन है, राइट, पूना का, तो वहां पर है, इन द कन्नड़ वैली में। इट वॉज अ renowned fort well suited for defense. Yes, अब ये जो obviously this fort is very renowned, means very popular fort, and it is well suited for defense, मतलब खुद को सेव करने के लिए, खुद को डिफेंस करने के लिए, खुद को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, मीन्स बहुत ज़्यादा मीन्स अच्छा फोर्ट है, suited fort. There were two strong marches on the way to the fort. Yes, now obviously अब उनको उसके ऊपर अटैक करना, राइट। तो मैंने बोला ना आपको पहले, क्या जो फोर्ट्स होते हैं वहाँ पे उन लोग हेड ऑफिसर्स रहते हैं, जो पर्टिकुलर एक एक बंदे को उसका चार्ज दे देते। तो वैसे ही यहाँ पर तोरना फोर्ट के ऊपर और भी वहाँ पे क्या थे, जो चार्ज दिया हुआ था, जो मतलब पर्सन को, दे वर सिटिंग ऑन द वे। So there were two strong marches on the way. Yeah, right. So a machi is the fortification of a natural plateau form on the slope of a hill. Yes, अब देखो माची क्या होता है, राइट। सो माची इट्स नॉट अ पर्सन, माची क्या है, देखो मतलब उनको जब ये फोर्ट कैप्चर करना था, व्हेन शिवाजी महाराज वांट टू कैप्चर तोरना फोर्ट, एट दैट टाइम व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू देयर वे, वो जब उनके रास्ते से जा रहे थे, सो इन हिज वे ही गॉट टू माचिस, है ना। उनके रास्ते में उनको क्या मिली, फोर्ट के रास्ते पे जब जा रहे थे तो उनको टू माचिस मिले। तो व्हाट इज माची, माची इज अ फोर्टिफिकेशन ऑफ अ नेचुरल प्लेट्यू। क्या है वो, कि नेचुरल प्लेट्यू है जो किससे फॉर्म हुआ है, ऑन द स्लोप ऑफ अ हिल, मतलब जो हिल का जो स्लोप होता है वहां पे फॉर्म हुआ है। ओके,
So on this machis was the Junjar Machi and the other the Budla Machi. मतलब देखो वहाँ पे two माची है. One is Junjar Machi and second one is Budla Machi. So Junjar Machi, like its name, could after powerful defense. अब देखो जो जुंजर माची है, so its name could often powerful. मतलब इसका जो name है, it was very powerful. Here is a picture of Torna Fort. देखो ये दो two way दिख रहा है. This one is Junjar Machi and next one is Buddha Machi. Budla Machi. Okay, these are the two ways. Yes, so these were the very powerful, very important place to defense from our enemy. The the only access to the fort was across the Junjar Machi. It is a very difficult passage with high hills on one side and deep valley on the other. Yes, so the way of Junjar Maji, that was very difficult. मतलब जो रास्ते Junjar Maji का, that was very difficult. Right, there was a high hills. वहाँ पे क्या थी, high hills थी on one side and deep valley on the other side. मतलब एक side पे बहुत ज़्यादा high जो hills होती है, बड़े बड़े जो mountains होते हैं hill वाले, right? तो वो mountains थी और जो other side थी, तो उसमें क्या थी, valleys थी. A careless person may easily lose his balance and end his life in the deep valley. Yes, obviously, if a careless person will walk on that way, so he will definitely, uh, in obviously he will definitely lost his life. Obviously, वो अपनी जो life है वो मतलब गवा देगा, क्योंकि वो जो रास्ता है that way was very difficult, बहुत डेंजर रास्ता था. ऑब्वियसली हम लोग ऐसे कोई रास्ते भी अगर वॉक करते हैं ना, तो हम लोग को बहुत केयरली वॉक करनी पड़ती है. तो वैसे ही अगर कोई केयरलेस बंदा वो मतलब रास्ते पे वॉक कर रहा है और उसका अगर ध्यान नहीं है, उसका अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं है, तो ऑब्वियसली ही विल लॉस्ट हिज लाइफ एंड हिज लाइफ और लॉस्ट हिज लाइफ इन द डीप वैली. Torna was considered one of the strong fort of Maharashtra. Yes, so at that time Torna was a very important fort or very strong fort of Maharashtra. In the fort there is a temple of goddess Toranjai. Yes, so in that fort there is one temple situated, and the name of that temple or that statue, that is goddess Toranjai. मतलब वो मतलब वो fort में temple situated, right? तो the name of the temple means वहाँ पे जो statue मूर्ति रखी हुई goddess की, तो that was Toranjai. That is why the fort is called Torna. That is why the name of that fort is gives to Torna. मतलब यही वजह से मीन्स जो fort के अंदर जो temple है, उसकी वजह से ही वो फोर्ट का नेम क्या रखा गया था, तोड़ना रखा गया था. ओके, सो strangely enough this powerful fort was neglected by Adil Shah. Yes, but means obviously fortunately this was a very important place, important fort, but this place were neglected by Adil Shah. मतलब आदिल शाह इतना पावरफुल होने के बाद भी he neglected this fort. There were neither enough troops for its defense nor enough ammunition. Yes, अब देखो obviously आदिल शाह का वो फोर्ट के ऊपर मतलब इतना ज़्यादा लुक आउट नहीं था, है ना, वो इतना ज़्यादा उसकी केयर नहीं कर रहे थे. तो obviously there were neither enough troops, वहाँ पे ज़्यादा troops थे for its defense and nor enough ammunition. Shivaji knew this and this was exactly what he wanted. Obviously अब देखो अभी 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 अगर हम लोग को कोई चीज़ चाहिए, एंड फर्स्टली वी नो दैट, हम लोग को पहले पता था कि दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क, मे बी आई विल डू इट और नॉट, है ना, हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. बट जब हम लोग को पता चलता है कि दैट वे इज़ वेरी ईजी, मतलब जो जो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन थी कि हम लोग के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी ट्रेजेडी हो सकती है इन दैट वे, लेकिन एग्जैक्टली वैसी चीज़ें नहीं होती है. सो सेम सिचुएशन शिवाजी महाराज के साथ हुई है. उनको लिटिल बिट ऐसा लग रहा था कि ऑब्वियसली वो जो है मतलब तोड़ना जो फोर्ट है वो किसके अंडर में, आदिल शाह के अंडर में, तो मे बी वहाँ पे ऑब्वियसली ट्रूप्स होंगे. बट फॉर्चुनेटली वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, मतलब जो रास्ता था वो टोटली क्लियर था, राइट. सो ही डिसाइडेड टू कैप्चर द फोर्ट एंड दस ले द फाउंडेशन ऑफ हिंदवी स्वराज. यस, सो स्टार्ट फिर इसीलिए शिवाजी महाराज ने क्या किया, शिवाजी महाराज हैड कैप्चर दैट फोर्ट, शिवाजी महाराज ने वो फोर्ट को कैप्चर कर लिया. एंड ही मेड ही लेड द फाउंडेशन मीन ही लेड मीन स्टार्ट, उन्होंने अपना जो फाउंडेशन का स्टार्ट उन्होंने किया यहाँ से, एज अ नेम गिवन बाय हिम, दैट हिंदवी स्वराज. Okay, now next one is the drum of Swaraj began to sound. Okay,
With a new select band of Mavlas, Shivaji descended into the Kannad Valley. Yes, so now he got the Todna fort, है ना? So here the people of that Swaraj, or the people who were supporter of Shivaji Maharaj, so they were enjoying this event. Obviously इतना बड़ा जो fort है उन्होंने capture कर लिया, they won that thing. So they were celebrating this moment. So they had selected some few band of Mavlas, and Shivaji descended into Kannad Valley. Yes, Shivaji Maharaj का enter हो गए थे, entered to the Kannad Valley. Shift footed like the deer and lion, hearted in courage, they raised to the top and captured. Yes, so sweet footed like the deer and lion, hearted in courage. They raced to the top and captured their strategic position in the fort. Tanaji Malsura hosted the Maratha flag at the main entrance. Yes, अब देखो obviously इन लोग का फर्स्ट ये क्या था, मतलब फर्स्ट ऐसा फोर्ट था जिन्होंने कैप्चर किया था, राइट? तो उन्होंने वहीं से अपना स्वराज, मतलब उनका जो किंगडम है उसका स्टार्ट किया था शिवाजी महाराज ने। तो वैसे उनका बहुत अच्छे से, मतलब वो एरिया में, मतलब वो जो कन्नड़ फोर्ट, कन्नड़ वैली में उनका बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे थे, जो उनके पीपल थे, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे ये सारी चीजें में वो लोग। तो तनाजी मॉल्सोर उन्होंने क्या किया, तनाजी मेलू सर ने, उन्होंने क्या किया था, ही होस्टेड द फ्लैग, उन्होंने वहाँ पे मतलब एट द टॉप ऑफ द फोर्ट उन्होंने क्या किया, वहाँ पे फ्लैग होस्ट किया था मेन एंट्रेंस में। सो यसाजी कांक एंड trustworthy and loyal companion of Shivaji posted his guard at important point. Yes, अब देखो जो येसाजी कांक, राइट, बहुत ज्यादा ही ट्रस्टफुल बनते थे शिवाजी महाराज के अंडर में, एंड अ वेरी लॉयल कंपेनियन ऑफ शिवाजी महाराज. So he posted his guard at important point. The fort was captured almost without any resistance, and the sky was filled with shout. Obviously, बिना किसी प्रॉब्लम के जो फोर्ट है वो उन लोगों ने कैप्चर कर लिया था, एंड दे आर हियरिंग द मींस उन लोग क्या, मतलब ऑब्वियसली स्काई से उन लोग किसी आवाजें, मतलब पीपल हु आर लिविंग देयर, दे आर शाउटिंग ऑफ शिवाजी महाराज की जय. ऑब्वियसली वो जो बैटल मींस इन शॉर्ट दैट वाज नॉट बैटल, दे आर कैप्चर्ड दैट फोर्ट, है ना, उन लोगों ने वो जो फोर्ट है वो कैप्चर किया था. So the people of that kingdom, they are shouting Shivaji Maharaj ki jai. And the first battle drum and pipes of Hinduvi Swaraj had sounded, and their echo reverberated throughout the valley. Yes, obvious. So here the people of that kingdom, or the people who are giving support to Shivaji Maharaj, they are saying that Shivaji Maharaj ki jai ho, and they are banging the drums, pipes of Hinduvi Swaraj, right? Shivaji named this fort Prachantgarh. Yes, so afterward, means when Shivaji Maharaj conquered that fort, he renamed that fort, right? उन्होंने क्या किया, वो fort का name change कर दिया. उसको name क्या दिया जाता है? He gave that name Prachantgarh. Okay.